Hare Krishna. So previously we discussed about the complete knowledge from complete. So basically we discussed about uh, the ways of gaining knowledge. Hopefully if you remember. So yes, Prabhu. So Yes. there are so many ways of gaining knowledge, and people they try to get knowledge in different way, and they try to conclude that their understanding, but most of the time their knowledge is actually not perfect, or the fruit of knowledge also not perfect. The fruit of knowledge also becomes uh, something else, futile. So that's very important when it comes and where to gain knowledge from, so that our endeavors will be in perfection. Uh, our endeavors will get into perfection. So that is called Shabda Praman, Vedas. So whole Vedanta Sutra, whole Vedas is actually nothing but it is the voice from a person who is not of our element. Our element, if we say our element, मतलब हमारा element क्या है? Our senses are imperfect. Because of that we get illusioned, and because when we get illusioned, then we commit mistakes, and when we commit mistakes, then we try to cheat others, right? These are our elements. These are our rightful element. So I welcome some more devotees just joining. Amya Prabhu, Indranil Prabhu, Puranjay Banerjee Prabhu also. So welcome back, Prabhu. So we are just recap. So some more devotees will be joining, because now it is festival season and cold also. So it will be very nice for them to join, because cold season, sitting in one place in a room and hearing some signs of Krishna is great fun. So so that we discussed. So ultimately it's required for a human being to actually come to Shastra, come to Shruti. That's very important. So that's actually the complete knowledge we discussed, from complete whole, and that complete whole is Krishna. His definition is Purnasya Purnam Adaya Purnameva Vasishyate. He is that complete. From whole complete comes out, then complete remains. And this is called arithmetic, the absolute arithmetic. 1 minus 1 is equal to 1. That is absolute mathematics of spiritual world, or spiritual mathematics. Mathematics of this world is 1 minus 1 equal to 0. But absolute mathematics goes like this: 1 minus 1 is equal to 1 only. Okay. So this is called absolute world, where the whole energy comes out, but the energetic never becomes diminished by the energy, how much the energy has come out. So he is the source of energy, and there is unlimited energy, and there is nothing called energy conservation theory that works there. So एनर्जी कंजर्वेशन वहां पे नहीं लगता है. हमारा छोटा साइंस जो हमारा छोटे बुद्धि में घुसता है वो नहीं लगता है. So there are so many rules and regulations that we are actually knowing that is not applicable even to the higher planets, or maybe uh, out of this earthial, hemisphere. It's not applicable. So we came to know that there are so much of complexity, there's so much of knowledge which is actually not known to the human beings, and those knowledge actually have been revealed by Vedas, or in Vedanta Sutra. So that knowledge is actually given by Supreme Lord Krishna, who is actually not of our element. He is not a jiva. He is not a jiva. He is actually the person who is beyond these 4 difficulties what a jiva है. हम लोग के पास जो डिफिकल्टी, जो 4 जो समस्या हैं, उनसे वो परे हैं. So
दैट्स व्हाई वेदास आर कॉल्ड अपौरुषेय। वेदों को बोला गया है अपौरुषेय, मतलब कि ये जो नॉलेज है हम लोग के जैसे लोगों के द्वारा दिया हुआ नहीं है, जिनके पास जिनकी जो इंद्रियाएं हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, और वो फिर से इल्यूजन हो जाती हूँ, भ्रमित हो जाती हूँ, और भ्रमित हो जाने के बाद वो मिस्टेक कर बैठती हैं। मिस्टेक करने के बाद हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस मिस्टेक को लेपापोती करते हैं, छिपाते हैं। तो ये उसमें नहीं है। किसमें नहीं है? कृष्ण में नहीं है, with para brahman absolute. So that's what we discussed last session. Okay, so now let's go ahead with Srimad Bhagavad Gita introduction. I'm just about to share my mind map with you all. Hare Krishna. So if all of you are okay, fine with everything, then please write down in the chat box, everything fine. Cold is increasing slowly, and festival time now, like everybody is in like very much honeymoon mood. Yesterday was Christmas and also Bhagavad Gita Jayanti. So we had great fun distributing Bhagavad Gita yesterday in different places of this area, specifically Durgapur, Raniganj. Practically in just 8 hours of long run of book distribution, we had so many people actually coming together distributing books of Srila Prabhupada, and we had around 32 books of Srila Prabhupada Bhagavad Gita distributed and Krishna book. It was powerful, wonderful experience. So yeah, I'm getting some of the responses. Oh, no response till now I got. So everything is fine from your side. Please write down everything fine or EF in the chat box and we'll go ahead. Okay. Hare Krishna. Thank you so much, all of you, for responding. So let everything remain good and well from your side. So as I have already shared that document from Srila Prabhupada Bhagavad Gita introduction, and in this Srila Prabhupada is talking about some very wonderful concepts that he is going to reveal in the Bhagavad Gita through Krishna. So we have discussed this review. So review is done, recap is done. So then Srila Prabhupada is talking about my way is not highway. So पूरा का पूरा जो भगवत गीता है इसी को बताने के लिए है कि हमारा जो रास्ता, हमारे मन का जो रास्ता है, मन के द्वारा जो कंसेप्ट किया हुआ लाइफ जीने का, वो संभवतः सबसे सही नहीं हो सकता है, जैसा अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन का क्या स्थिति था कि वो बोल रहा था कि मैं लड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं लड़ूंगा? क्योंकि लड़ने के बाद मुझे खुशी नहीं मिलेगी। जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं उन्हीं को मैं तो मार दूंगा, तो किनके साथ अपना राज्य का भोग करूंगा? और अपने आप को वो शरीर समझ के इस तरह के बहुत बड़े बड़े लॉजिक दे रहे थे अर्जुन। और देन कृष्णा स्टार्टेड pounding all those logic into powders. First of all, he told that, my dear Arjun, you are speaking very great, learned words, but actually you are mourning about something which is actually not worthy to be mourned about. मतलब कि आप इसके लिए चिंता कर रहे हो जो कि जिसके लिए चिंता करने योग्य नहीं। So then Lord is telling that you are not this body, you are soul, and being the soul, you have eternal dharma. Being the soul, you have eternal dharma, you have your own occupational dharma. So उसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक के बाद एक कर्म योग, उसके बाद ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये सबों को एक एक करके वो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सबों को बताने की चेष्टा की है, बस 700 श्लोक में। सो भगवद गीता की जयंती कल ही थी। तो यह जो भगवद गीता है ये हमारे
अभी जो कॉन्टेम्परेरी लोग हैं ना, उन्हीं को टारगेट करके भगवान ने 5000 साल पहले दिया. So because in Kali Yuga people will be very much disturbed, and they will require this knowledge this time. And specifically in Dwapar Yuga, when people had so much of lifespan, 1000 साल लोग जीते थे, उस समय चीजें बहुत ही नॉर्मल होती थी, लोग ठीक ठाक जीवन जी लेते थे, उतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं था उस समय, उतने ज्यादा लोग खुराफाती नहीं होते थे. होते थे, लेकिन लास्ट समय में, द्वापर के लास्ट में बहुत सारे लोग खुराफाती हो गए थे, लेकिन पूरे के द्वापर में ऐसे बहुत ही जीवन बहुत बिंदास होता था, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना होता था. इसके लिए क्या है कि जीवन का जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो पाता था. इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में कलयुग के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए स्पेसिफिकली, वी आर द ऑडियंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वी मस्ट अंडरस्टैंड, and we are able to see now that Bhagavad Gita and Sanatana Dharma, the real true meaning of Vedanta was never revealed so nicely in any other age, whether it is Satya, whether it is Treta, Dwapar, or like maybe latter age, latter part of Kali Yuga. So in the beginning part of Kali Yuga, the real essence of Vedanta has been revealed to the human society, because human society is the perfect, what we can say, a receptive form, a receptive mood to grab that. So we see Krishna's way is the only highest way. That is actually the Sanatan way, and that's only Dharma. Dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yin gata sapantha. And also it is told, Dharma is what is spoken by Krishna. Dharma matlab ki what has been the rules, what are the rules actually given by the Supreme Lord. That is called Dharma. So then Krishna describes how living entity must adhere to and abide by the orders of Supreme Lord. So Arjuna left his all those different types of ideas, and he told, okay Krishna, I will do whatever you tell. Karishya vachanam tava. So Krishna's way is actually the highest way, and this is called also perfect way. This is only called the perfect way. So it's very important, बहुत जरूरी है हमारे साथ कि हम कृष्ण से परामर्श लें. बहुत बार दिमाग करें, यार कृष्ण क्या हमें बताएगा, कृष्ण के भक्त लोग क्या बताएंगे, लेकिन जब तक हम इस चीज को नहीं समझे, उनसे विचार नहीं लें, तब तक न जाने बहुत सारे प्रयास करें अर्जुन की तरह, बहुत सारे लॉजिक के साथ हमारे जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी. या फिर जो जीवन का उद्देश्य है, जीवन का क्या उद्देश्य है, मजा करना, टू रिमेन हैप्पी, दैट कैन नेवर बी अचीव्ड अनलेस वी लीव दिस कंसेप्शन ऑफ माय वे इज हाईवे. हमारा जीने का जो रास्ता है, जीने का जो तरीका है, वो सही है. उसमें कृष्ण का कोई पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए, और उसका इट्स ओके, भगवद गीता इज फाइन बट नॉट रिलेवेंट फॉर मी. तो ये वाला जो कंसेप्शन है, इसको हटा देंगे तो क्या होगा कि बहुत ही आसानी से व्यक्ति सनातन धर्म को समझ सकता है, और अपने सनातन जो स्वरूप है, सनातन उनका जो नित्य जो उनका स्वभाव है, उसको प्राप्त कर पाता है. तो इसलिए बताया कि मनुष्य जो जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसमें अच्छा और बुरा दोनों, बस ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे बुरे का, वो सिर्फ मानव योनियों के लिए है. कुत्ते बिल्लियों के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है. ये नहीं बोलता कि अच्छा कुत्ता है और बुरा कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता होता है. तो उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फिक्स्ड है, उनका ट्रेड्स फिक्स्ड है. लेकिन मनुष्यों के लिए, हम लोगों के लिए अच्छा बुरा है. हम लोगों के लिए कर्मा, विकर्मा, सकर्मा, मतलब हर तरह का कर्म होता है. सत्व, रजस, तमस, इन 3 गुणों के प्रभाव से आके हम लोग बहुत सारे कार्यों को करते हैं. तो मनुष्य जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल योनि है, रिस्पॉन्सिबल स्पीसीज है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल स्पीसीज है मनुष्य. वो जानवरों की तरह नहीं है. सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य क्या है कि वो अपने बारे में समझे, सनातन स्वरूप के बारे में वो समझे.
तो प्रभुपाद जी 3 चीज के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। आप अगर एग्जर्ट पढ़े होंगे तो सनातन साइंस के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद सेज दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर इटर्नल। जितने भी जीव हैं सभी नित्य हैं, सभी नित्य हैं, और उनका नित्य धर्म है, एक्टिविटीज है, और उनका नित्य धाम है। ये 3 चीज के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। सनातन जीवा, सनातन एंटिटीज, उसके बाद सनातन धर्म और सनातन धाम। तो ये 3 चीज किसके लिए है? सिर्फ मनुष्य के लिए है। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल स्पीसीज मनुष्य के लिए ही है। टू अंडरस्टैंड दिस, सनातन एंटिटीज हैव नथिंग टू डू विद द मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पे जितने भी लोग अटक फटक रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, एक सिटी से दूसरे सिटी में, have nothing to do with the miseries of material world. हम लोगों को इस संसार के दुखों से कोई भी लेना देना नहीं। The problems of this world are not supposed to come upon us. Bhagavatam also, it has been very vividly described that problems are superfluous to living entities. Problems which is actually inflicted upon us is not supposed to be upon us, but we are opting those problems, we have nothing to do with the miseries of this material world. So why it is so? Because we are not responsible. हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम अपने सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म मतलब कि what our position is, that actually have been mentioned by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Sanatana Goswami. Sanatana Goswami was a prime minister of then Bengal's king, and his name was Nawab Hussain Shah. 500 साल पहले तो एक राजा था इस पूरे बंगाल का, उसका नाम था नवाब हुसैन शाह। हिस्ट्री में मौजूद है। मालदा में कोई रहता है, पुरंजे रहता है मालदा में। मालदा में उसका अभी भी बड़े बड़े ऐसे आलिशान ऐसे गढ़ हैं। अभी मैं देखा था, कुछ दिनों पहले हम लोग गए थे। तो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से वहां पे मिले, और वो प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि ग्राम में व्यवहारे कहे पंडित ताई सत्य करी मानी। गांव के लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित बोलते हैं। गांव पंडित क्यों? क्योंकि वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत का क्या, अरबी, उर्दू और बांग्ला तो छोड़ ही दो। तो इस तरीके से बहुत बड़े पंडित थे सनातन गोस्वामी, और इतने बड़े इंजीनियर थे कि उस समय का सबसे बड़ा एक मीनार उन्होंने बनाया था, जिसके ऊपर चढ़ के दूसरे स्टेट से जो आक्रमण होने वाला है उसकी सूचना मिल सके। तो एक ऐसे बड़े इंजीनियर भी थे। तो हम लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिए, तो ऐसा नहीं है। पहले सनातन गोस्वामी इतने बड़े इंजीनियर थे। इतने बड़े इंजीनियर जाने जाने के बाद क्या हुआ कि नवाब हुसैन शाह उनको बोला कि तुम्हें मेरे अंडर सेवा करना पड़ेगा, नहीं तो सभी ब्राह्मणों और वैष्णवों को मैं मरवाऊंगा या फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाऊंगा। तो जबरदस्ती उनको उनके अंदर काम करना पड़ा और मुस्लिम बनना पड़ा था। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ग्राम में वहारे कोई पंडित ताई सत्य कोई मानी, अपना हिता हित पीछू नहीं जानी। बोल रहे हैं कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा हित क्या है, मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है, लेकिन गांव शहर के लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित बोलते हैं, लेकिन मैं घमंड से उसको मैं सत्य मानता हूँ, हाँ हो सकता है पंडित। और उसके बाद बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कि के आमी केनो अमर जारे तापत्र। मैं क्या नहीं जानता हूँ, लोग तो पंडित बोलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। केनो आमे अमर जारे तापत्र, क्यों मुझे 3 तरह का जो मिजरीज है, प्रॉब्लम है, वो मुझे इतना परेशान कर रहा है। 3 तरह का प्रॉब्लम क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, समस्याएं जो हमारी मन बुद्धि के कारण होता है, शरीर के कारण होता है। दूसरा है आदि दैविक क्लेश, जो कि नेचुरल डिस्टर्बेंसेस के कारण होता है। और तीसरा है आदि भौतिक क्लेश, दूसरे जीवों के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारी चीज, हम ये सारी जो मिजरी समस्याएं बार बार मुझे परेशान कर रही है, और क्यों कर रही है और इसका क्या उपाय है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा विद्वान हूँ, पंडित हूँ। तो
सनातन धर्म क्या है? वो है रेंडरिंग सर्विस। सभी लोग सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी का सेवा कर रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि मैं अपना सेवा कर रहा हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तो इस संसार में सभी किसी न किसी का सेवा कर रहे हैं। ए बी का कर रहा है, प्रभुपाद चैतन्य ने बी सी का कर रहा है, सी डी का कर रहा है। सभी एक न दूसरे का सेवा किए जा रहे हैं। छोटे से छोटा जीव भी कुछ न कुछ सेवा कर ही बैठता है। पेड़ पत्ते सभी लोग सेवा कर रहे हैं। खड़े रह के भी पेड़ क्या देता है? फल देता है, लकड़ियां देता है, ऑक्सीजन दे रहा है, सेवा कर रहा है खड़े खड़े। हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, लेकिन ये सर्विसेज ऐसे कर रहे हैं जो कि नित्य नहीं है, इटर्नल नहीं है। आज कर रहे हैं, कल नहीं रहेगा, कल दूसरा सेवा करेंगे। बोलते हैं आजकल तो 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल में कंपनी लोग बदल देते हैं। आजकल तो परिवार भी इतना मुश्किल हो गया है। एक परिवार में सेवा करते हैं हस्बैंड के रूप में, फिर दूसरा परिवार बना लेते हैं, दूसरे परिवार में हस्बैंड के रूप में सेवा करते हैं। और बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो ये इटर्नल नहीं है। सो क्यों इटर्नल नहीं होने के कारण, सनातन नहीं होने के कारण ये जो धर्म है, सेवा का जो धर्म है, वो इटर्नल है, लेकिन कहाँ पे सेवा किया जाए वो भी समझना जरूरी है। तो वो है सेवा जहाँ पे किया जाना चाहिए, उसका जगह का नाम है परम धाम, या फिर वैकुंठ धाम, या फिर वैकुंठ का दूसरा नाम है नारायण श्री कृष्ण। तो उनकी सेवा को सनातन धर्म कहा गया है, जो कि जीवों का नित्य स्वरूप है। द रियल आइडेंटिटी ऑफ द जीवा इज जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का जो दासत्व है वही जीवों का नित्य स्वरूप है। और उसको भूल के इसको अगर कोई भूला रहेगा, तब तक, जब तक वो भूला रहेगा तब तक बेटा वो घूमता रहेगा इस संसार में, इस योनि से उस योनि में, इस घर से उस दूसरे घर, इस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट बस घूमता रहेगा, जब तक कि वो ना समझ ले कि माय ओनली एंड ओनली धर्म कुड बी टू सर्व सुप्रीम गॉड। Okay. So this is called Sanatan Dharma, which is actually the ultimate goal of Vedanta or Vedas, to bring or gravitate the whole living entities towards Sanatan Dharma. That's why this Vedas are actually being compiled by Sri Vyasadeva. So to reach the eternal Sanatan Dharma, this is actually the most important responsibility of human being, and which only humans can execute it. And जब कोई सनातन धर्म करता है, सनातन धाम पे पहुंचता है, तो क्या होता है? वो इस संसार के जितने भी मिजरीज हैं जो कि उसके लिए नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको वो शॉर्ट सर्किट कर पाता है या फिर बाईपास कर पाता है, which never undergoes horrible changes. So सनातन धर्म के बारे में, सनातन धाम के बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यत्सु नश्यत्सु न विनश्यति, यसाम सर्वेषु कालेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वो कभी भी उस धाम का विनाश नहीं होता है। कभी भी यहाँ के जैसे जो 6 तरह के चेंजेस होते हैं, संसार में 6 चेंजेस होते हैं। किसी चीज का जन्म होता है, क्रिएशन होता है, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता है, मेंटेनेंस होता है, बाय प्रोडक्शन होता है, उसके बाद उनका विघटन होता है, विघटन होने के बाद मरण होता है। 6 तरह का चेंज जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ नया है, फ्रेश, सब कुछ ताजा, सब कुछ एवर चेंजिंग, सब कुछ एवर इंक्रीजिंग, सब कुछ एवर ब्लिसफुल, सब कुछ एवर रसफुल, आई मीन फिल्ड विथ रस। तो यह है सनातन धर्म, जहाँ पे सभी जीवों का अधिकार है। सभी जीव वहीं से मूल रूप से गिरे हैं, संभव अनादि कर्म फले। तो सभी जीवों का वहां पे जाने का अधिकार है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म की परिकल्पना भगवान इस डार्केस्ट रीजन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड में किए हैं। कैसे? वेदों के प्रति। तो लोग बोलते हैं कि अरे इतने सारे अन्य धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम धर्म है, तो ये सब धर्म सभी मूल रूप से एक ही सनातन धर्म है। लेकिन जब उन लोग या फिर कोई भी जीव इन सभी धर्मों का आश्रय लेने के बाद अगर भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, भगवान की सेवा नहीं कर पाता है, तो ये भी बेकार है। ये पार्टी स्पिरिट हो गया फिर। तो पार्टी स्पिरिट इज नॉट धर्मा। धर्मा ऑफ लिविंग यूनिटी इज टू रेंडर सर्विस ऑफ द लॉर्ड, रेंडर लविंग सर्विस टू द लॉर्ड।
तो वो है क्या धर्म। नहीं तो पार्टी बना लिया है, टैग बना लिया है, आई एम मुस्लिम, आई एम हिंदू, एंड बस फाइट कर रहे हैं। फाइट करना धर्म नहीं। तो इसलिए having no these religions having no efficacy if they are not able to get their people towards supreme Godhead. पितान सस्या सजनो न सस्या दैवम यस्यान्न पतिन सस्यान नमोचि यदिस यह समुपीत मृत्यु। अरे वो पिता पिता नहीं हो सकता, माता माता नहीं हो सकती, देवता देवता नहीं हो सकता, वो गुरु गुरु नहीं हो सकता, वो स्वजन स्वजन नहीं हो सकता, जो अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों को भगवान के पास नहीं ले जा सके, या उसको मुक्ति, जन्म मृत्यु का जो पाश है, मृत्यु से उसकी रक्षा न कर सके। तो इसी सनातन धर्म की परिकल्पना करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही प्रबल रूप से सनातन धर्म का स्थापना इस भूलोक में कर चुके हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम। तो इस तरीके से सब कुछ मौजूद है श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा से। तो हमें बस करना है क्या है कि उन सभी बेनिफिट, उन सभी फैसिलिटीज का बेनिफिट उठाएं। श्रील प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ना चाहिए, और चाहिए हमें कि उनका कैसे दूसरे लोगों को, दूसरे जीवों को कनेक्ट करें, जो कि इस परम विज्ञान सनातन साइंस को नहीं जानते हुए बेचारे पता नहीं न जाने कितने सारे ऑप्शंस को क्लिक कर रहे हैं प्रत्येक दिन, लेकिन कोई भी क्लिक उनका काम नहीं कर रहा है। So let this search of eternal happiness would end up with Bhagavad Gita as it is click, and their life will be happy and blissful. And this is what is actually the order of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Jare dekho tare ko Krishna Upadesh. You see anyone, you feel like, no, I could give him something. The best thing what you can give him or her is nothing but Krishna consciousness, and that person will never forget you. So, and he will be eternally indebted to you. That's why it's very, very important to actually practice ourselves Krishna consciousness in whatever condition we are in in our phase of life, and in this way ultimately reach to our eternal Sarupa, Sanatan Sarupa, to be the servant of the Supreme God Krishna. And in this way we can be perfectly happy in Krishna consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So if all of you are there with me, then I hope you could write down in the chat box, there with you, TWY. Okay, quickly, then we'll go ahead with our chanting session. Okay, thank you so much, Suez Pro, for writing. Okay, thank you, Shan Pro, Abhishek Pro, and some more devotees are still okay. Thank you so much. So, Hare Krishna. So we are now at the end of our session. So the chanting now, if it's good that you can open up your mask, and so that we could see each other. Anywhere you are there, we could see each other. It will be better rather just impersonal. Okay, thank you so much, Prabhus. Don't be shy. Try to keep the light in the front rather in the back side. The simple video tricks that we should know it. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Let's go ahead. Namo Vishnu-paya, Krishna-pishthaya, Namo Acharya. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna. We'll end here, meeting next week. Hare Krishna.